Very good morning, children. Let's start another new chapter of history, chapter 7, Town Traders and Craftsmen. So, without wasting time, just let's get started. These pictures reveal old city of our country. That is VT Station of Mumbai, Marine Drive. It is an older picture. It is old Mumbai. And these pictures reveal that earlier Mumbai, Kolkata and Delhi, these were the very small town. That picture is Qutub Minar, and that black and white picture reveal the old Delhi, means Shahjahanabad. Shahjahan shift his capital from Agra to Delhi. That Shahjahanabad made by Shahjahan. That is picture is Jama Masjid. It is a heart of old Delhi. Jama Masjid's picture is there. And now some religious places of our country. Nawaz Sharif Dargah, religious temple are there. It is Hampi, situated in Karnataka. Golden Temple, Amritsar. Gurudwara, another Gurudwara is there. And temple, Varanasi, Haridwar. Temples are pilgrims center we can say. So these things are reveal so many things, that earlier towns are very small. So children, welcome to the chapter 7, Towns, Trader and Craftsman is our topic. So earlier, people living in the small village, gradually these village developed into the towns. और towns भी कई तरह के हो गए, जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो गई वो ट्रेडिंग टाउन कहलाए, जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी हुई जैसे वो इंद्रप्रस्थ हुआ, अजमेर हुआ, अमृतसर हुआ, बोध गया हुआ, सारनाथ हुआ, ये पिलग्रिम सेंटर्स डेवलप हो गए. और जहाँ पे रूलर्स की एक्टिविटी होती थी, कोर्ट टाउन, हड़प्पा, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, हम्पा, चौलास्की, कंजोर, ये सब हो गई इनकी कैपिटल्स हो गए, जहाँ पे कैपिटल या कोर्ट टाउन, जहाँ पे राजा बैठ के अपने मैनेजमेंट को कंट्रोल करता था और वहाँ पे रहता भी था. ओके और रिलीजियस टाउन, रिलीजियस एक्टिविटी की वजह से टेम्पल्स हो गए, उनकी अर्निंग सोर्स राजाओं की वहाँ पे हो गया. जैसे राजा चोला ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे साउथ में, और उनका मेन मकसद अर्निंग सोर्स भी था कि उससे मंदिरों में बहुत सारा गोल्ड भी रखते थे वो, और अपने प्रशासन को वो चलाते थे पुराने टाइम में. सो चोलाज ने बहुत सारी कैपिटल्स और कोर्ट टाउन और ये ट्रेडिंग टाउन डेवलप किए. इन द सेम वे पुराने टाइम में एक मसूलीपट्टनम था, हम्पी था, ओके, एंड मदुराई था, जो कि बहुत सिस्टमेटिकली बसे हुए थे, और ये कोर टाउन या रिलीजियस टाउन थे, और यहाँ पे बहुत अच्छे डेवलप्ड मैनेजमेंट था. लेकिन ग्रेजुअली वो सब सिस्टम जो है धीरे धीरे डायनेस्टी अगर ख़त्म हो गई है तो नई जगह बस जाती है. जैसे आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट हुए थे अकबर, शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाया तो वो शाहजहानाबाद शिफ्ट हो गए है ना दिल्ली के पास, और फिर ओल्ड दिल्ली बसी. इन द सेम वे मिडाइवल में डायनेस्टी ने अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन, कोर्ट टाउन और रिलीजियस सेंटर्स को डेवलप किया. यही सेंटर्स हम पढ़ेंगे आज की. रिलीजियस इसमें पिलग्रिम सेंटर्स में क्या होता है, कोर्ट टाउन में क्या होता है, पोर्ट टाउन में क्या होता है. कोर्ट टाउन जहाँ पे राजा रहता भी था और अपने राजपाट को देखता भी था. पोर्ट टाइम जहाँ पे ट्रेडिंग होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम कोस्टल से होता था उस टाइम, तो तवंजु हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया और सूरत हो गया. ये बहुत ओल्ड पुराने ये ट्रेडिंग टाउन हो गए, पोर्ट टाउन हो गए. और उसके बाद मुंबई और कलकत्ता जो ब्रिटिशर्स के टाइम डेवलप हुए टाउन हो गए. सो टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन means we will in this chapter the title is revealed that we will talk about those towns who maintained and developed by so many dynasties and many rulers, and trading town also like Mumbai and Kolkata,
is the example of trading town. Earlier Surat was there, Masolipatnam was there. And why they trading, why these towns are famous? Their craftsmen, means the trading persons who do the craft persons, like Surat was famous for the cotton mills and the other things. So we will read all these things in this chapter. Village, town and trading town. We know that the discovery of agriculture prompted early men to settle near his field. Earlier, the people living in a small town and they depend on the agriculture and they living in their field. Gradually, thus was laid the foundation of village. Gradually, these group of person or group of people living that town or that place is called small village. And then when more and more people begin to settle in these villages, gradually many of these villages develop into the town. अब फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा गांव हो जाता है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ आ जाती है और बहुत सारी ट्रेडिंग होने लगती है, बहुत सारी शॉप्स खुल जाती है, एग्रीकल्चर में भी वो है, मार्केट भी है, स्कूल भी है, तो वो क्या बन जाता है, एक टाउन बन जाता है ना। जितने भी हैं पहले पुराने शहर कभी ना कभी कोई गांव रहे होंगे। अर्लियर भी अगर अलवर की भी बात लें तो 100 साल पहले की पिक्चर में अलवर कुछ और ही था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलर्स, रूलर की एक्टिविटी मतलब रूलर रहता कहाँ है, जैसे आगरा डेवलप हुआ वो मुगल्स रहते थे, दिल्ली डेवलप हुआ लोधी, ये दिल्ली के जो सल्तनत पीरियड था उसमें ये सारी डायनेस्टीज, स्लेव डायनेस्टी से लेके लोधी डायनेस्टी तक सब वहीं दिल्ली रहते थे, तो उन्होंने बनाया भी, बिगाड़ा भी, बड़ा एक्सटेंड भी किया। और रिलीजियस जहाँ पे टेंपल हो या कोई मस्जिद हो या दरगाह हो या गुरुद्वारा हो, उसकी वजह से रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होने लगती है, तो वो रिलीजियस एस्पेक्ट से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है टाउन। और पुराने टाइम में रिलीजियस का मतलब था वेल्थ, उसमें राजा का चलता था, मैनेजमेंट चलता था। क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, सम ऑफ टाउन फ्लोरिस्ट, और कुछ फ्लोरिस्ट हुए जैसे अयोध्या, पाटलिपुत्र, पटना, ये सब फ्लोरिस्ट टाउन है, रिलीजियस भी और कॉर्टियर भी। दे फ्लोरिस्ड एज ए कोर्ट टाउन और कैपिटल, और फिर धीरे धीरे जिसमें सारी तरह की एक्टिविटी हो वहाँ वो फ्लोरिस्ट हुए, या तो कोर्ट टाउन में या कैपिटल्स में। कोर्ट टाउन जहाँ पे कोर्ट लगता हो, राजा का जहाँ पहले दरबार लगता था, कोर्ट लगता था। और कैपिटल आपको पता ही है, आगरा रही है, दिल्ली रही है, फतेहपुर सीकरी रही है, ये सब उनकी, शाहजहानाबाद थी, ये उनकी कैपिटल्स थी। अब है डेफिनेशन, आपको ये करना भी है बेटा होमवर्क में। पिलग्रिम्स मतलब पिलग्रिम टाउन कौन से हैं, एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी, आप भी ढूंढ सकते हो पिलग्रिम्स के सेंटर्स। पिलग्रिम रिलीजियस प्लेसेस वेयर पीपल गो फॉर द पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा जिसे करते हैं, तीर्थ या होली प्लेसेस कह सकते हैं हम। अब होली प्लेसेस में कौन कौन से आते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, अभी प्रेजेंटली तो हमारे यहाँ पे अमृतसर है ना, सारनाथ है, बोध गया है, केदारनाथ है, मथुरा है, महाबलेश्वर है, पुरी है, ये सब रिलीजियस प्लेसेस है। और अर्लियर भी जैसे हम्पी हुआ, मसूलीपट्टनम हुआ, ये सब थे। पोर्ट सिटीज़, पोर्ट जहाँ पे, सिटीज़ विच आर सिचुएटेड ऑन सी शोर एंड नोन फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो शहर या वो टाउन जो कम सी के एज के किनारे बसा हुआ हो और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था। आज भी जो ट्रेडिंग है उससे वाटर वेज से सस्ती मानी जाती है और आज भी वो यूज टू है। तो जो भी टाउन है जो कोस्टल में थे, क्योंकि पोर्तुगीज़, डचेज़ और मुंबई, ये ब्रिटिशर्स तीनों ही कोस्टल एरिया से आए थे, तो कोस्टल एरिया उनके लिए इम्पॉर्टेंट था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, बिजनेस के लिए, ले जाने के लिए, माल लाने के लिए, ले जाने के लिए, तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी। पोर्ट सिटीज़ जैसे सूरत हुआ, कोलकाता हुआ और मुंबई हुआ, पहले वो छोटे से विलेज थे, फिर विलेज से वो टाउन में डेवलप हो गए और वो क्या कहलाए, पोर्ट सिटीज़ कहलाए, पोर्ट सिटीज़। कोर्ट सिटीज़ कैपिटल, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं हम हमारा आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, है ना, अयोध्या, मोहनजोदाड़ो, ये सब फतेहपुर सीकरी, ये सब कैपिटल टाउन है जहाँ पे कोर्ट लगा राजा का, वो कोर्ट सिटी हो गई। अयोध्या हुआ, कौशाम्बी हुआ, वैशाली हुआ, इंद्रप्रस्थ हुआ, ये सब कैपिटल टाउन्स कहलाए। नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिंग टाउन्स। ट्रेडिंग भी कमर्शियल हो गया जिसमें ट्रेडिंग होता है, सी शोर का तो अलग हो गया पोर्ट, उसके अलावा भी ट्रेडिंग होती थी जहाँ पे लोग बाग आते थे, सामान खरीदते थे। जैसे गांव के लोग बाजार जाते हैं, छोटे टाउन में जाते हैं सामान लेने, तो वो वहाँ पे ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें ट्रेडिंग का, तो मुंबई भी है, दिल्ली भी है, लुधियाना भी है, ये सब सूरत भी है,
लेकिन पहले और छोटे छोटे टाउन्स रहते थे जो ट्रेडिंग टाउन में ट्रेडिंग टाउन से फेमस हुए, है ना, इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स बने। इन सब के एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके चिल्ड्रन, सो ये डेफिनेशन आपको अपने बुक में करनी है और लिखनी है। पिलग्रिम्स, पोर्ट सिटीज़, कोर्ट सिटीज़, ट्रेडिंग टाउन एक्सेट्रा। ओके, अब कल हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके एग्जांपल्स करेंगे कि कौन से पिलग्रिम सेंटर्स बने और बिगड़े। जैसे बहुत सारे सेंटर्स तो जो थे वो एकदम आइसोलेट से होके बहुत अच्छे बन गए और आज भी बहुत अच्छे हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, सूरत है, ये इनका एग्जांपल है। लेकिन कुछ कोर्ट सिटीज़ और ट्रेडिंग जो थे वो उस टाइम उस डायनेस्टीज़ में तो यूज़फुल थे, बहुत अच्छे थे चोलाज में, लेकिन अब वो खंडर हो गए या उनका कोई यूज़ नहीं है। जैसे हम्पी हो गया, है ना, अपने अलवर में भी एक अजबगढ़ भानगढ़ है जो बहुत अच्छा सेंटर था, कोर्ट टाउन था, अब नहीं है। विराटनगर था, कोर्ट कैपिटल था गुप्त काल में, अब नहीं है उसकी यूज़, वो आइसोलेट हो गया या र्यून में कन्वर्ट हो गए। शाहजहानाबाद था दिल्ली के पास, अब वो र्यून्स में है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी। लेकिन कुछ नई एक्टिविटीज़ होने की वजह से या नए डेवलप पॉपुलेशन और अर्निंग सोर्स होने की वजह से वो बढ़ते चले गए, और कुछ जो पुराने बसाए थे राजा ने वो ख़त्म होते चले गए। जैसे तंजौर है, हम्पी है, विजयनगरा एम्पायर है जो कि अब बिल्कुल नाम की है, या वो र्यून्स है या वो सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस में कन्वर्ट होके रह गए। तो अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जो मिडाइवल एज में भी और उससे मिडाइवल पहले भी डेवलप हुए और इम्पॉर्टेंट हुए और उसके बाद आइसोलेट हो गए, और कुछ अभी भी चल रहे हैं। जैसे सूरत हुआ, कैलकाटा हुआ, मुंबई हुआ, वो अभी भी चल रहा है। मसूलीपट्टनम अब नहीं है, हम्पी अब नहीं है, मदुराई अब नहीं है, तंजौर अब नहीं है ना, इनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई, बस ये हिस्टोरिकल प्लेसेस बन के रह गए। सो वी विल रीड ऑल दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू चिल्ड्रन, आपको होमवर्क में की टर्म्स एमसीक्यूज और मैचअप करने हैं। नाउ कम टू एमसीक्यूज। Hampi wall marks the location of ruins. Now Hampi is turned to the ruins. It is a capital of Vijayanagara's empire. Answer is Vijayanagara. B is the right answer. Vijayanagara's empire. Madras was founded by the Portuguese. Earlier it was a village and it was developed by the Portuguese. And then the English was acquired that place. Amritsar is famous for the Golden Temple. So Golden Temple is called religious pilgrims center. B is the right answer. Tamrilipti is situated in West Bengal. It is a court town and it is situated in a Bengal. Right answer is a Bengal. Now come to the fill-ups. Patliputra was founded by Ajatasattu, the ruler अजातशत्रु। पाटलिपुत्र महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है, वही पाटलिपुत्र और हस्तिनापुर। तो इट्स ए वेरी ओल्ड कोर्ट टाउन, इट्स डेवलप्ड बाय अजातशत्रु। डैश इज़ ए पिलग्रिम सेंटर। तो डैश में आपको कुछ भी भर सकते हो, अजमेर भी सही है, अमृतसर भी सही है, वाराणसी भी सही है, मथुरा भी सही है। जो भी आप भरोगे वो पिलग्रिम सेंटर होना चाहिए, बस ये आंसर है। तो बाकी सारे आंसर कंसिडर होंगे। तो मैंने अजमेर और अमृतसर लिखा है, आप मथुरा भी कर सकते हो, बोध गया भी कर सकते हो। ओके। डैश इज़ ए पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी कौन सी है? मुंबई भी है और सूरत। अब एंशंट अपन मिडाइवल टाइम की बात कर रहे हैं, मिडाइवल से पहले की, तो सूरत इज़ द पोर्ट सिटी। क्या है सूरत? क्या है? पोर्ट सिटी है। पोर्ट जहाँ पे सी शोर होता है और वो कमर्शियल ट्रेडिंग के उससे इम्पॉर्टेंट होता है। दिल्ली इज़ ए कोर्ट टाउन। दिल्ली, अयोध्या, आगरा, ऑल दीज आर कोर्ट टाउन। तो दिल्ली इज़ द आंसर। आगरा भी कर सकते हो यहाँ पे। मसूलीपट्टनम इज सिचुएटेड इन नियर द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम। पुराना टाउन है, पोर्ट टाउन है, बिजनेस के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदारो वाज द कोर्ट टाउन ऑफ दिल्ली सल्तनत। नो, मोहनजोदारो दिल्ली सल्तनत का नहीं है, सो इट्स फॉल्स। इट इज़ ए फॉल्स। द ब्रिटिश बिल्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। यस, ट्रू, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था बाद में मद्रास को पोर्तुगीज से लेके। अजमेर इज़ ए फेमस पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। नो, अजमेर पोर्ट नहीं है, अजमेर कोर्ट टाउन रहा है अकबर के टाइम, और फिर अर्लियर पिलग्रिम सेंटर भी है, सो इट्स फॉल्स। मुल्तान वाज ए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन। यस, मुल्तान अब तो वो जगह नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में चल गई है, वरना ट्रेडिंग टाउन के लिए वो फेमस थी, सो इट इज़ ए ट्रू। हम्पी
हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगराज एम्पायर। हाँ सही है, विजयनगरा एम्पायर की वो कैपिटल थी। सो इट इज़ ए ट्रू। ये आपको करने हैं कॉपी में, और की टर्म्स भी जो कि मैं पहले ऊपर ही चैप्टर में बता चुकी हूँ। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। आई होप you are better understand this chapter with the help of interesting picture and module. We will explore this chapter, pilgrim centers and the ancient port and core town, on the next slide. Till then, take care yourself, respect to your elders, and we all missing the school campus and children, you too also. So hope you are fit and fine at your home. Thank you.